हुफ्फाज कुर्रा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज आपका और हमारा यहाँ पर जमा होना और यहाँ पर बैठना एक खास मकसद के तहत है। हमारे करम फरमा जनाब हाफिज फुरकान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया एक ज़माने तवील से आपके महल्ले में बच्चों को और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, दीन की तालीम उनको दे रहे हैं। एक वक्त लंबा उनको गुजर गया, मुझे ये बात पहले मालूम भी नहीं थी। उन्होंने एक दिन इस बात का इजहार फरमाया और कहने लगे कि कुछ बच्चों की हौसला अफजाई, जैसा कि अभी वो अमल आप हजरात के सामने आएगा, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये आपका और हमारा यहाँ बैठना हुआ है कि जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है उनकी हिम्मत अफजाई हो, उनका हौसला बढ़े, और जो दूसरे बच्चे हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, वो जब इस चीज को देखें तो उनके अंदर भी तलब पैदा हो कि भाई हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो कल इंशाअल्लाह ऐसे ही हमें भी नवाजा जाएगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनका हौसला, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा उनके अंदर तलब। और एक बात और बताऊं, देखिए, इल्म दीन एक ऐसा इल्म है जिसे हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इसको आदमी बचपन में भी हासिल कर सकता है और जनाब 55 में भी हासिल कर सकता है। अगर 10 साल का बच्चा है वो भी कुरान पढ़ सकता है, बाल सफेद हो गए वो भी कुरान पढ़ सकते हैं। एक हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, बड़े ऊंचे दर्जे के, उनकी एक बात आपको सुनाऊं। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदा, बड़े ऊंचे किस्म के लोगों में थे। वो कुरान पाक एक हाफिज साहब को सुनाया करते थे। जिनको वो कुरान सुनाते थे, दौर करते थे, उन्होंने ये वाकया मुझसे बयान किया। कहते रोजाना सुनाया करते थे, एक पारा, 1.5-2 पारे रोजाना सुनाते थे, और हजरत को गलतियां बहुत लगती थी। गलती मुतशाबे बहुत हुआ करते थे। तो हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदा ये कहा करते थे कि भाई मुझे गलती बहुत लगेंगी, मुतशाबे ज्यादा लगेंगे, और पता है उसकी वजह क्या है? कि जो काम बचपन में करना चाहिए था मैंने 55 में किया। यानी हजरत ने बचपन में हिफ्ज नहीं किया था, बड़ी उम्र में चलकर फिर हिफ्ज किया।
یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ یہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا، اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا ایک نظام چل رہا۔ حضرت حافظ صاحب نے یہ نظام چلا رکھا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی اس سعی کو، اس محنت کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اور اس کا شرف قبولیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے انہیں اجر ملے گا۔ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں۔ میں نے سنا حافظ صاحب قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس عمر میں ماشاءاللہ آپ کے انہوں نے 10 دن کا قرآن سنایا۔ بڑی ہمت چاہیے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور جو بڑی عمر کے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا ہے، وہ قرآن پاک پڑھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو یہ بتائیے قرآن پڑھنے کے لیے یہودی آئیں گے یا عیسائی آئیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اور یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوٹ کریں کہ صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں، بلکہ اچھا پڑھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، آپ کے ذمے 3 کام لگائے گئے تھے، یہ 3 کام کرنے ہیں جا کر۔ اسے ہر ساتھی یاد رکھے کس کے کام تھے یہ تینوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام۔ کون کون سے؟ پہلا کام یہ تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ دنیا میں جا کر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بتا رہا ہوں، پہلی ذمہ داری، پہلا کام یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ آج الحمدللہ جتنے بھی مکتب، جتنے بھی مدرسے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہ آپ کے اس مشن کی تکمیل ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ پہلا کام تھا، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ بھائی کبھی حافظ فرقان صاحب کے پاس جا کر اگر آپ بیٹھیں گے تو وہ بچوں کو یہی تو کہلائیں گے کہ بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ایسی تو پڑھاتے ہیں۔ دوسرا کام کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ کتاب کے معنی بتائیں اور اس کی حکمت لوگوں کو بتائیں۔ آج جو مدرسوں کے اندر قرآن پاک کی تفسیر، مسئلے مسائل پڑھائے جاتے ہیں وہ یہی ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا تھا؟ تیسرا کام آپ کا بتایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ۔ زکا یزکی کے معنی آتے ہیں صاف کرنے کے۔ آپ کا تیسرا کام یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیے سیرت، آج تو ویسے بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपनी जिंदगी के अंदर बाकायदा इस पर मेहनत की, सहाबा की जिंदगियां बनाई, उनका तज़किया किया। हाँ, उनके अंदर को बनाया, उनके दिल को बनाया, उनके यकीन को बनाया, उनकी रूह को मुनव्वर मुजफ्फर मुजल्ला बनाया। मैं एक मिसाल देता हूं बस, लेकिन ये नहीं कि भाई मिसाल एक ही है, मिसालें तो बहुत सारी हैं। एक मिसाल हिजरत का वाकया। देखिए, रबीउल अव्वल की मुनासबत से भी बात आ गई। इसी तरह हिजरत का वाकया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और आपके साथ हिजरत में आपके साथ हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। गारे फौर एक गार का नाम है, वहां आपका कयाम रहा 3 दिन। मक्का वालों को पता चल गया। जब मक्का वालों को पता चला तो मक्का के लोगों ने ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उसको इनाम में 100 ऊंट मिलेंगे। 100 ऊंट, 100। और उस जमाने में ऊंट बड़ी कीमती चीज थी। आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा, ऊंट कैसे कीमती थी, मैं बताऊं। जो आज हैसियत 4 व्हीलर की है, उस जमाने में वो हैसियत। अब आप बताइए कि 100 4 व्हीलर, 100 कितना बड़ा इनाम हो गया। इतना बड़ा इनाम हो गया। लिहाजा मक्का के लोगों ने तलवारें ली और घोड़े खोले और घोड़ों की पीठ पर बैठकर तलाश में निकल गए। और सूंघते सूंघते, तो बड़े माहिर लोग थे ना, सूंघते सूंघते उस जगह पहुंच गए जिसका नाम गारे सौर है। क्या नाम है गार का? गारे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गार के अंदर हैं और सिद्दीक अकबर गार के अंदर, और ये सूंघते सूंघते वहां पहुंच गए, ये पूरा जत्था। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि आप 2 हैं और ये सैकड़ों। और बताओ, सूरत हाल ये है कि आपके पास हथियार नहीं है और इनके पास हथियार है। सूरत हाल क्या है कि आप तन्हा हैं और इनके साथ पूरी फौज की फौज, बटालियन है, बटालियन। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके कदम नजर आ गए तो चेहरे पर घबराहट हुई और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का के लोग पहुंच गए हैं, कि फिर क्या हुआ? अब देखिए, जरा तज़किया देखिए कि आपने कैसे मेहनत की और अंदर कैसा बनाया। तवज्जो फरमाया आपने फरमाया कि अबू बकर फिर क्या हुआ कि अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। आपने गौर किया? अगर इन्होंने हमें क्या कर लिया तो फिर हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, मारे जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो ये बात सुनी तो एक अजीब और गरीब जुमला इरशाद फरमाया। ऐसा जुमला बुजुर्गान दीन कि वो रब को इतना पसंद आया कि कुरान पाक का उसको जुज बना। क्या है वो जुमला? वो जुमला हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह। क्या मतलब? मतलब ये कि अबू बकर अभी तुम्हारे ईमान में भी लचक है। तुमने मेरे साथ 13 साल गुजार दिए, मेरे साथ 13 साल का अरसा गुजार दिया, और अभी तुम ये समझते हो कि मौत और जिंदगी इनकी तलवारों में है।
کیا کہا کہ موت اور زندگی ان کی تلواروں میں ہے، طاقت میں ہے، مکہ والوں کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یحیی ویمیت، صدیق یاد رکھو مارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور زندگی دینے والی ذات بھی اللہ۔ پلٹ دیا اندر، بنا دیا اندر، اور کیا کہا لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، تو یاد رکھو ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ان کے ساتھ اللہ۔ یزکیہم، تو آپ نے برابر اس کی طرف توجہ رکھی۔ یہ تیسرا کام کیا کہ اندر کو بنانا، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے، اندر کو صاف کرنا، روح کو مجلہ بنا دینا، دل کو پاکیزہ بنا دینا۔ خیر میں نے یہ آیت پڑھی اور میرے پڑھنے کا مقصد اور کہنے کا مقصد اس آیت سے یہ تھا کہ یہ جو ہمارے حافظ صاحب کر رہے ہیں بڑا اونچا کام کر رہے ہیں۔ کیا کہ قرآن کی آیتیں ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں، معمولی چیز ہے۔ تو بھائی ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا ساتھ کیا ہے؟ ان کا ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس میں بھیجیں۔ یہ ہمارا کرنے کا کام۔ اچھا، ہمارے یہاں جو کوتاہی ہوتی ہے ایک بہت بڑی، وہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو تو ہم نے بھیج دیا، لیکن بعد میں نہ تو جا کے کبھی استاد سے پوچھتے ہیں اور نہ کبھی بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیرا سبق کون سا چل رہا۔ مجھے تقریباً سن 97 سے اور اب 2000 میرے خیال سے شہر کے بہت سے بچے یہاں جامع الہدیٰ میں رہتا ہوں وہاں پڑھنے کے لیے آئے۔ شاید میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایک دو کو چھوڑ کر کسی کے باپ نے آ کے یہ معلوم نہیں کرا کہ ہمارا بچہ پڑھ کیسا رہا۔ ایک دو میں، یہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ معلوم کریں جاتے کہ بچہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں، اسے مدرسے بھیجا ہے وہ گیا یا نہیں گیا۔ دیکھیے جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا یا بچی قرآن پڑھنے کے لیے جائے گی، یاد رکھیے شیطان اس کے پیچھے لگ جائے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ پڑھ نہ سکے، پوری کوشش کرے۔ تو خیر یہ میرے خیال سے 5 یا 6 بچے ہیں جن کو اس وقت انعام سے نوازا جائے۔ میرے خیال سے سب بچے آپ ہی کے اپنے بچے ہیں، سب آپ کے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، کہیں باہر کے بچے نہیں۔ تو دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عالم بعمل بنائے، آمین۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح تعلیمات پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اور ہم جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی اچھی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اچھی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور خود بھی اس کے اوپر تہیہ کریں کہ ہم خود بھی قرآن پاک کو اچھا پڑھیں گے، اور اگر پڑھنا آتا ہے بہت اچھا، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو کوشش کریں بھائی، پڑھنا نہیں آتا تو کیا کریں، کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جن سے قرآن پڑھنا آتا، جن سے پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جن سے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ میں تو کامیاب ہو گیا بس اب مجھے کچھ ضرورت نہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 25 سال 30 سال کا بچہ جب عرب جاتا ہے تو چند مہینے میں اتنی عربی سیکھ لیتا ہے کہ اسے یہ پتا چل جائے کہ روٹی کو کیا کہتے ہیں، بوٹی کو کیا کہتے ہیں۔
टैक्सी में चढ़ना है तो क्या कहना है, उतरना है तो बिल्कुल अंगूठा टेक गया और 4 महीने के अंदर उसने सब सीख लिया कि बिस्किट की अरबी ये है, लेमचूस की अरबी। जब आदमी किसी चीज को अहमियत देता है तो फिर उसका सीखना आसान होता है। तो जिन्होंने कुरान पढ़ लिया है वो इस बात का तहिया करें यहां बैठकर और अज़्म करें यहां बैठकर कि इंशाअल्लाह हम कुरान का तर्जमा भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, और भी कुछ नहीं तो जितनी सूरतें कुरान पाक में पढ़ी जाती हैं उनका तर्जमा तो हमसे आ जाए। तो ये जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला का ये हमारे नाम मैसेज है। ये तो पता होना चाहिए कि अल्लाह ने मैसेज क्या दिया। तो जिनसे कुरान पढ़ना आता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुरान पाक के तर्जमे को सीखने वाले बने। खैर, ये चंद मोटी मोटी बातें थी जो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जहन में डाली और मैंने आप हजरात के सामने उसको अर्ज किया। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इससे मुताल्लिक एक दो बात ये अर्ज करे देता हूं कि हमारे अकाबिरीन ने बड़ी तहकीक के साथ, बहुत तहकीक के साथ इस बात की तलाश की है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पैदाइश कब हुई और आपकी वफात कब हुई। तो बड़ी मेहनतें करने के बाद, तमाम उलमा ने सर जोड़ने के बाद मेहनतें करके इस नतीजे पर पहुंचे कि आपकी जो पैदाइश है वो रबीउल अव्वल की 9 तारीख पीर का दिन है। तो ये बात तो याद रहेगी इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख? 9 तारीख। और दिन की इसका, ये तो हो गई आपकी पैदाइश। पैदाइश कहां हुई आपकी? आपकी वालिदा का नाम हजरत आमीना, और जब आप पैदा हुए तो पैदा होने से पहले ही बाप का इंतकाल हो चुका है और बाप का नाम हजरत अब्दुल्लाह। एक मजे की बात सुनाओ, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई, अभी मां के पेट में, शिकम मादर में, कि लोगों ने आकर आपके दादा से, जो कि दादा तो सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, ये कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ये जो तेरी बहू है, बहू तो कहते हैं लड़के की बीवी को, हाँ नाम में कुछ तो जवाब दो भाई, बहू कहते हैं ना। कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हारी बहू कहां से खुशबू मंगाती है? अरब कल भी और आज भी खुशबू का बड़ा दिल दादा होता है। दीवाना, दीवाना किसका? खुशबू का। किसका दीवाना? खुशबू का। और एक बात बताऊं, नेक आदमी खुशबू का दीवाना होता है और शैतानी आदमी बदबू का दीवाना होता है। जितने जादूगर होंगे सब बदबू वाले मिलेंगे आपको। मैं ऐसे ऐसे जादूगरों से वाकिफ हूं जिन्होंने कई कई साल तक नहाए नहीं। अरब खुशबू का दीवाना। तो कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा का नाम है क्या? अबू तालिब था। देखिए इस बात की हमारे आपके साथ की मेहनत है। क्या हुआ? तो कहा कि तुम्हारी बहू खुशबू कहां से मंगाती है? क्या कहा? हम तो कूफा जाते हैं, बसरा जाते हैं, शाम जाते हैं, यमन जाते हैं, मिस्र जाते हैं, ऐसी खुशबू कहीं नहीं जैसी खुशबू इस आमना के घर से आती है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई बात तो यही है, मैंने भी ये नोट किया है कि खुशबू इसके घर से बड़ी शानदार आती है। शौहर इसका नहीं, कमाने वाला इसके पास नहीं, जमीन जायदाद इसके पास नहीं, बहुत बड़ी जायदाद इसके शौहर ने छोड़ी नहीं, इतनी महंगी खुशबू मंगाती कहां से है कि सरदारों के पास नहीं, इसके पास है। आप नोट कर रहे हैं बात? तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो बहू के घर चले गए
और बहू के घर जाकर, ये 12 रबीउल अव्वल की एक आध बात आ जाए जी, बिल्कुल, घर चले गए और घर जाकर कहा कि आमिना के जी अब्बा जान, कि ये बता बिटिया, ये खुशबू तू कहां से मंगाती है? आज सरदाराने कुरैश मेरे पास आए थे और वो ये कह रहे थे कि ऐसी खुशबू तो हमें भी नहीं सूंघने को मिली। अल्लाहु अकबर। तो पता है हजरत आमिना ने जो जवाब दिया वो सुनिए। क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया कि अब्बा, खुशबू के पैसे कहां, यहां तो आटे के पैसे नहीं। कि फिर ये खुशबू कहां है? कि पता नहीं, जब से ये बच्चा मेरे शिकम में ठहरा है, अल्लाह ने कितनी बरकतों वाला ये बच्चा रखा है, मेरे घर से इस बच्चे की बरकत से ये खुशबू उठती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो तिरमिज़ी की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसीना था, इतना ही अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे वो अल्लाह आपका भला करे सऊदी अरबिया का किंग ही क्यों ना हो, पसीने में क्या आएगी जी? बदबू आएगी। बदबू? पसीने में क्या आएगी? बदबू आएगी। गलत तो नहीं कहा मैंने? लेकिन आइए देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की शान ये थी कि अगर उसको किसी खुशबू में मिला दिया जाता तो वो खुशबू हमेशा हमेशा के लिए पायदार हो जाती। आपके पसीने में खुशबू आया करती थी, पसीने। अल्लाह ने अजीब गरीब कैफियत रखी थी। जिस गली से, जिस राह से गुजर जाते थे, सहाबा समझ लेते थे यहां से गुजर के गए। भाई तुम्हें कैसे पता चल रहा है? यहां से खुशबू आ रही है। नहीं, उर्दू के शायर ने कहा था ना, कहे देती है शौकी नफ्स बाकी, क्या कहे देती है शौकी नक्श की, अभी इस राह से कोई गया है। जिन राहों से गुजर जाते थे वो खुशबू से मुअत्तर रास्ते हो जाया करते। आपने बाकायदा हुक्म दिया उम्मत को कि जुमे के दिन नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो। नहीं, जो अच्छे कपड़े हों वो पहनो। हमारे यहां उल्टा है, दावत खाने जाएगा तो अच्छे कपड़े पहनेगा, जुमे की नमाज पढ़ना आएगा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। अच्छे कपड़े पहनो और खुशबू लगाओ। ये बाकायदा आया है, हदीस के अंदर आया है। तो खैर, आपकी पैदाइश कौन सी तारीख को हुई? 9। और आपकी जो वफात हुई है, ये तहकीकी बात है कि आपकी वफात रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई। और अभी कुछ ज्यादा नहीं, जुमा 8 दिन है। अब से 15-20 साल पहले तक हमारे इलाके में अक्सर, अब भी कुछ लोग कहते हैं, आज के दिन को क्या कहा करते थे? 12 वफात कहते। क्या कहते थे? 12 वफात। क्या कहते थे? 12 वफात के माना पैदाइश नहीं, कोई बोलता ही नहीं। अरे वफात के माना पैदाइश के हैं नहीं, शादी